Hello everyone, welcome to Insightful Maths. In today's session, we are going to learn very important concept of class 7. The name of the chapter is Lines and Angles. We all are aware what are lines, what are angles. So different concepts of going ahead, whatever you have already learned in grade 6 that we'll see here, we'll learn here. So if you are in grade 7 and this topic is coming in your half yearly exam, or you must have already learned it in the school and you need a quick revision, this video is for you. So I request please see the video till end so that you get clarity on all the concepts which are there in this chapter. So let's begin the session. First thing that we need to know about in this chapter is this term, what are complementary angles. Please mind the spelling. It is not PLI like that complement. It's not. It is complementary angles. Any two angles whose sum is 90 degree. If any two angles are given, you add their measure and the sum is 90 degree. Those pair of angles are known as complementary angles. We are talking about the pair of angles. Pair means two angles. So any two angles, when you sum it up, if the sum is 90 degree, those are known as complementary angles, and each angle is known as the complement of another one. What does it mean? We can see here these two angles are here. If I add 65 and 25, what do you get? It is 90 degree. That means these two angles are complementary angles. The question can be asked in this manner: if one of the angle is 30 degree, okay, one of the angle is 30 degree, find the complement of this angle. Complement means एक ऐसा angle आप बताइए, if that angle is added to 30 degree, the sum should be 90 degree. Why 90? Because it is as per the definition, the sum of two complementary angles has to be 90 degree. ठीक है? So how do I get another angle? When one of the complementary angles is given and you are supposed to find out the other one, just subtract the given angle from 90. So unknown angle x will be equal to 90 minus 30 and your answer is 60. Since we are talking about angles which are measured in degrees, you have to put this symbol of degree here. Your answer is 60 degrees. Correct? तो अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है एंड यू आर सपोज टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल 90 minus the given angle. It could be asked in the terms of a variable as well. If I ask you one of the angle is x, what is the complement of this angle? तो हम क्या करते हैं? 90 minus given angle in degrees. This is the complement of the given angle. Correct? In the similar manner, another pair of angles is supplementary angles. For complementary, the sum was 90. For supplementary, the sum has to be 180. So any pair of angles where the sum of two angles is 180, those are known as supplementary angles, and each angle is known as the supplement of the other one. For example, have a look here. If I add 120 and 60, सम कम्स 180 डिग्री, तो ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स क्या हुआ? दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. इट कुड बी फॉर एग्जाम्पल 180. if I give you the pair of these angles and you add them up, you will again get 180 degree. So this pair of angles is again a pair of supplementary angles. If I give you one of the angles, for example 95 degrees, and I ask you what is the supplement of this angle, तो आपको ये पता होना चाहिए. Supplement means another angle which when added to 95 it should give you the sum 180 degrees. ठीक है, तो आप अब कैलकुलेट करो 95 में what has to be added to get 180 degrees. So the value of this unknown angle is 180 minus the given angle. So what is the answer? That is 85 degrees. जब आप इन दोनों को माइनस करोगे you will get your answer. तो अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल पता है, दूसरा निकालना है, straight away 180 minus the given angle. If for complementary angles one angle is known and another is required, 90 minus another angle. ठीक है, this much is clear. Now one of the very interesting thing or the basic thing that you should know is
What is the measure of the complementary angle such that both the angles are equal? ठीक है, आप बताओ. What is the measure of the angle for which complementary angles they both are equal? अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और दोनों इक्वल है, दोनों का सम कितना होना चाहिए? सिंस द एंगल्स आर इक्वल, मैं दोनों को x ले रही हूँ. ठीक है, x प्लस एक्स, व्हाट इज द सम? इट शुड बी 90 डिग्रीज. x plus x, what is that? That is 2x. It goes to 90 degree. Twice of x, twice of which number is 90 degree? Twice of which angle is 90 degree? किस number का double करे 90 आ जाए? That is 45. So value of x is 90 divided by 2, that is 45 degrees. So at 45 degrees, both the complementary angles are equal to each other. In the similar manner, at which measure both the supplementary angles will be equal? Supplementary का sum क्या होता है? 180. 180 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है so that both the angles are equal. So what should be the measure? It is 90-90 each. Complementary में at 45 degree both the angles are equal. For supplementary, if both the angles have to be equal, the measure of each angle has to be 90 degrees. I hope this much is understood. Let's go ahead. Another topic now, adjacent angles. Very interesting and very important thing that you need to know. What are the pair of adjacent angles? I'm making a figure here. Just understand this. Adjacent means you can just remember like the neighbors. Okay, neighboring angles. For example, this is one figure. Let me make one more so that you understand that better. One and this one. Okay, I have made this figure. Now let's understand what are adjacent angles. Since at this figure angles are made using the rays, I have made the rays. Let it be the vertex O. I am marking another points on the rays so that we can name that easily and you understand what I am talking about. Let's say this is point A, point B and point C. Okay. Adjacent angles means the angles which are joined together, which have one common vertex. देखो, एक common vertex होना चाहिए, एक common arm होना चाहिए और जो non common arm है ना, वो जो common arm है उसके different sides पे होना चाहिए. दोबारा सुनो. For example, I talk about this is first angle which is BOC. एक angle हो गया. Another angle is AOB, second angle. अब मुझे जानना है ये दोनों एडजेसेंट है या नहीं है. सबसे आसान तरीका आप ये देख लो, ये दोनों एंगल जुड़े हुए हैं. जैसे हमारे नेबर्स हमारे साथ रहते हैं, हम दोनों के घर ज्वाइंट होते हैं ना, बट वी डू नॉट शेयर एनी एरिया इन बिटवीन. हमारे घर का इनसाइड पोर्शन इज अलग, उनके घर का इनसाइड पोर्शन इज अलग. ठीक है, जस्ट अ कॉमन वॉल इज देयर इन बिटवीन. इन द सिमिलर मैनर, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर दे हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स? देखो, दोनों का वर्टेक्स O है, कॉमन वर्टेक्स हो गया. ये वाला जो आर्म है OB, ये वाला आर्म OB, ये फर्स्ट एंगल में भी आ रहा है, ये सेकंड एंगल में भी आ रहा है. ठीक है, ये दोनों एंगल OB पे ही तो जुड़े हुए हैं. सो दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म. दो चीज हो गई. थर्ड पॉइंट का मतलब है जो आर्म्स कॉमन नहीं है. ये वाला जो आर्म है OC, ये फर्स्ट एंगल का पार्ट है. दूसरा वाला जो आर्म है OA, ये दूसरा एंगल का पार्ट है. तो जो आर्म्स कॉमन नहीं है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स पे होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये वाला OA मैं यहाँ नीचे डाल दूं या फिर OC शुड कम अप. अगर एक आर्म ऊपर है, एक आर्म नीचे है, इट शुड बी लाइक दिस. इसको आप अलग तरीके से कैसे याद कर सकते हो? दोनों का कॉमन वर्टेक्स, दोनों का कॉमन आर्म, और जो इनका जो एरिया है ना, इनसाइड पोर्शन, देखो ये जो इनसाइड पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन, ये सारा है फॉर एंगल 2. ये वाला इंटीरियर पोर्शन इज फॉर एंगल 1. इज देयर एनी मिक्सिंग ऑफ द एरिया? मिक्सिंग तो नहीं हो रहा एरिया का, दोनों का एरिया डिफरेंट है. These two are adjacent angles. They are attached to each other and still they are having the different areas. कॉमन आर्म है, बाकी दो रेस उसके ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए, एक राइट एक लेफ्ट. ठीक है, लेट अस टेक दिस टॉपिक अहेड. मैंने यहाँ पर मेजरमेंट की कोई बात नहीं की है. एडजेसेंट का मतलब मेजरमेंट कुड बी एनी.
बस वो दोनों आपस में जुड़े होने चाहिए, उनका एरिया सेम नहीं होना चाहिए। नाउ हैव अ लुक एट दिस फिगर। अब इसको समझते हैं, इज दिस एडजेसेंट और नॉट। इसको मैं ओ बोलती हूँ, दिस पॉइंट लेट्स से इट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, इस एंगल को हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेट मी टेक इट एज 1, ये वाला डिस्टेंस लेट मी टेक इट एज 2। अब मुझे जानना है ये दोनों एडजेसेंट है या नहीं है। फर्स्ट थिंग फॉर एडजेसेंट एंगल्स इज दे शुड हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स ये होता है, अगर मैं एंगल बनाती हूँ ना, ये वाला पॉइंट वेयर द टू रेज आर जॉइंड टुगेदर, दिस इज द वर्टेक्स। फर्स्ट एंगल का वर्टेक्स क्या है, ओ। सेकेंड वाले एंगल का वर्टेक्स क्या है, ओ। दोनों का वर्टेक्स ओ है। पहला पॉइंट इज वेरीफाइड, दे हैव द कॉमन वर्टेक्स। सेकेंड पॉइंट इज दे शुड हैव कॉमन आर्म। दोनों का एक आर्म कॉमन होना चाहिए। एंगल 1 का देखो, एक आर्म है ओ सी, ये नीचे है, एक आर्म है ओ बी, ये ऊपर है। ठीक है, अब सेकेंड एंगल में एक आर्म है ओ ए, एक आर्म है ओ बी। इज दिस आर्म कॉमन इन बोथ द एंगल्स। ये जो दोनों एंगल है 1 एंड 2, ये दोनों ओ बी पे जुड़े हुए हैं, कॉमन आर्म भी हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये जो कॉमन आर्म है ना, दूसरे जो अनकॉमन आर्म है, जो डिफरेंट डिफरेंट है, जो शेयर्ड नहीं है, वो दोनों इस ओबी के ऑपोजिट साइड में होना चाहिए। अब आप देखो, एंगल 2 वाला जो आर्म है ये लेफ्ट साइड पर है, एंगल 1 वाला जो आर्म है वो ओबी के राइट साइड में है। सो कैन आई से दीज टू आर एडजेसेंट एंगल्स? आंसर इज यस, दे आर एडजेसेंट। ठीक है, एक फिगर और बनाते हैं। लेट्स से दिस इज एंगल 1, ये पूरा का पूरा एंगल 1 है, एंड आई एम मेकिंग अनदर एंगल इन बिटवीन, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ये जो छोटा वाला है ये एंगल 2 है। ठीक है, मुझे जानना है कि ये दोनों एडजेसेंट है या नहीं है। आई नीड टू नेम इट, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, जो बड़ा वाला रेड एंगल है वो पूरा एंगल 1 है, जो छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक है ये एंगल 2 है। फर्स्ट थिंग, दे शुड हैव अ कॉमन वर्टेक्स। एंगल 2 का वर्टेक्स ओ है, एंगल ए बड़े वाले एंगल का वर्टेक्स ओ है, दोनों का कॉमन वर्टेक्स वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट, दे शुड हैव अ कॉमन आर्म, एक रे कॉमन होना चाहिए। सेकेंड वाला एंगल, ये वाले एंगल में देखो, ये है सेकेंड वाला एंगल, इसमें एक रे है ओ बी। फर्स्ट वाला एंगल, ये रेड वाला एंगल, इसमें ओ ए और ओ सी, दोनों में क्या रे कॉमन है, ओ सी। जब मैंने ये ब्लू वाला एंगल बनाया था, ओ सी उसका भी पार्ट है। जब मैं बड़ा वाला रेड एंगल बना रही हूँ, ओ सी उसका भी पार्ट है। तो रे ओ सी दोनों में कॉमन है, वर्टेक्स ओ दोनों में कॉमन है। दो चीज वेरीफाई हो गई। लेकिन थर्ड पार्ट आपका क्या बोलता है, जो कॉमन आर्म है, कॉमन क्या है यहाँ पर, ओ सी। बाकी दो आर्म जो कॉमन नहीं है वो ओसी के ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए। अगर एक टॉप है दूसरा बॉटम, अगर एक लेफ्ट है दूसरा राइट। अब आप देखो, ओसी तो नीचे है, जो अनकॉमन आर्म है रेड वाले का वो भी अपर पार्ट पे है, जो ब्लू वाले का है वो भी अपर पार्ट पे है, ये दोनों तो एक ही साइड में आ गए। एंड देयर इज एन ओवरलैपिंग ऑफ एरिया ऑल्सो। ये वाला जो ब्लू वाला एरिया है पूरा एंगल 2 का, ये तो सारा का सारा एंगल 1 में ही आ गया। नेबर्स डू नॉट शेयर देयर एरियाज, हम घर थोड़ी ना शेयर करते हैं। ठीक है, सो दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज नॉन एडजेसेंट, क्योंकि अनकॉमन आर्म्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म। Getting it? So that is how these two are adjacent and the third one is non-adjacent. Let's move to the next topic now. Another term you need to know is a linear pair. Linear means, देखो यहाँ से हम एक word उठाते हैं line, यहाँ से हम इसे याद रख सकते हैं। linear pair में there is a word line. Angles made on a straight line are known as a linear pair. आप देखो, हमने ये अभी डायग्राम देखा था। The sum of these two angles is what? This is supplementary. अगर एक 120 है एक 60 है, दोनों को ऐड करूंगी 180। 180 क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे जो हमने अभी एडजेसेंट एंगल्स पढ़े थे, ये कॉमन वर्टेक्स है। एंगल 60 का एंगल 120 का वर्टेक्स भी कॉमन है।
और ये वाला जो ब्लू वाला आर्म है ये भी कॉमन है, 60 का भी है 120 का भी है, दोनों का एरिया भी अलग अलग है। तो ये क्या ये एडजेसेंट एंगल्स है? बिल्कुल, ये एडजेसेंट एंगल्स तो है, ये रहा पार्ट एडजेसेंट एंगल्स है ये। इनका सम सप्लीमेंट्री है, बिल्कुल सप्लीमेंट्री है, द सम इज 180। सो वी कैन से दैट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स, ये वाला नॉन कॉमन, ये ब्लू वाला इज कॉमन, ये एंड ये दे आर अनकॉमन, दे शुड मेक अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो अनकॉमन आर्म है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड दे आर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन opposite rays. This kind of angle is known as the linear pair. जहां पे भी हमें एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन यूज करना होगा हम बोलेंगे लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या हुआ? इट इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180, या फिर हम बोल सकते हैं द पेयर ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। इसे हम कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आई टेक द स्ट्रेट लाइन, दिस इज वन ऑफ द एंगल्स। इफ आई से दिस एंगल इज लेट्स से 40 डिग्री, मैं आपसे बोलती हूँ ये एंगल 40 डिग्री है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? और मैंने कुछ नहीं बोला, हमें पता है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। आप देखो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल पड़ा है ना, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। सो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन दे सम अप टू 180 डिग्री एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर में देखो वर्ड आ गया लाइन। सो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर लीनियर पेयर, उनका सम 180 होता है। 180 में से एक एंगल 40 है तो दूसरा कितना हुआ? इट हैज टू बी 180 माइनस द गिवन एंगल 40, आंसर इज 140। अब आप दोनों को ऐड करके देखो, 40 प्लस 140 इट इज गिविंग यू 180 एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे बात समझ में? वेरी गुड। Let us move to another one now. One of the easiest kind of angles, vertically opposite angles. We know that whenever two lines cross each other, क्या हम इन्हें intersecting lines बोलते हैं? They are intersecting. Intersect का मतलब होता है crossing each other at one common point. देखो इस common point पे ये दोनों लाइन आपस में कट कर रही हैं और intersect कर रही है। When they intersect, they are forming certain angles. For example, 1, 2, 3 and 4. Whenever two lines intersect each other, the pair of vertically opposite angles is always equal. How do we identify vertically opposite? अभी आप इधर देखो, ये एंगल 1 है, हम ऑपोजिट ढूंढ रहे हैं। ऑपोजिट मतलब जो इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। 1 एंड 2 ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। 1 एंड 4 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो कौन सा एंगल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है? 1 एंड 3। सो 1 एंड 3 ये क्या हो गए? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इन द सिमिलर मैनर एंगल 4 1 से भी जुड़ा हुआ है, 3 से भी जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ नहीं है? 2 से। सो दिस एंगल 4 एंड दिस एंगल 2 दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं अब आपको एक क्वेश्चन करते हैं, मैं आपसे बोलती हूँ एंगल बी की जो वैल्यू है ना वो 120 डिग्री है, गेट मी द वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स। अब ये कैसे बताएं? एक एंगल पता है, बाकी तो पता होना चाहिए। पहली चीज देखो, एक क्रॉस बन रहा है ना यहाँ पे, द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। बी और एम डायरेक्टली ज्वाइन है, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट हो ही नहीं सकते। बी और एम डायरेक्टली ज्वाइन है, नहीं हो सकते। कौन सा एंगल बी से डायरेक्टली ज्वाइन नहीं है? ए। आप देख पा रहे हो दोनों येलो में, these two are vertically opposite angle and they are always equal। तो डायरेक्टली ए की वैल्यू क्या आ गई? 120 डिग्री। हमेशा जब हम ऐसे यूज करते हैं ना प्रॉपर्टीज, यू नीड टू मेंशन विच प्रॉपर्टी हैव यू यूज्ड। सो यू हैव टू मेंशन दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपको पूरा लिखना है, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लेकिन अब एम और एन का क्या करें? इसका तो कोई क्लू गिवन नहीं है। हमने अभी अभी क्या पढ़ा था? लीनियर the angles on the straight always sum up to 180 degrees। अब आप ध्यान से देखो, PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल B
प्लस एंगल n, दोनों का सम कितना होना चाहिए? इट शुड बी 180. व्हाट इज द, तो अगर one angle is 120, another angle, it should be 180 minus 120. So answer is 60 degrees. n की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्रीज. अब दो लाइन क्रॉस हो रही हैं, n और m, आप ब्लू में देख पा रहे हो, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट. तो n की वैल्यू 60 डिग्री है, m is also 60 degrees. It's a very interesting chapter. It is just that practice more and more questions. You will enjoy these topics. Very easy and interesting chapter. ठीक है. I hope vertically opposite angles is done. You have understood. Let us go ahead for another pair of angles. Intersecting lines की हमने अभी अभी बात किया है. Whenever two lines meet each other at one common point and they cut each other, ऐसी pair of lines को हम बोलते हैं intersecting lines. You know this already. Now, what is the transversal? Very important. If I have any two lines, they may be parallel, they may not be parallel, hardly matters. If any two or more lines are there and these are intersected by a third line. Intersected मतलब these are cut by any third line. ये वाली जो third line है ना, इसे हम बोलेंगे transversal. What is a transversal? It is a line which intersects two or more line at different points. Very important. फर्स्ट लाइन को यहाँ पे कट किया, दूसरी लाइन को यहाँ पे कट किया, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है ना. सो ट्रांसवर्सल इज अ लाइन which intersects two or more lines at different points. This particular third line is your transversal. जरूरी नहीं है आपकी पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल भी होंगी. प्लीज अंडरस्टैंड, हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे बी एबल टू गेट इट. अगर मान लो मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस है और ये थर्ड लाइन है जिसने इन दोनों को कट किया है. अब ट्रांसवर्सल क्या हुआ? दो लाइन मेरे पास पहले से ही थी, दीज टू, एंड द थर्ड लाइन हैज कम विच इज इंटरसेक्टिंग दीज टू. अब ये वाली जो लाइन है ना, दिस इज योर ट्रांसवर्सल. ठीक है. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अगेन, व्हाट इज द ट्रांसवर्सल? It is a line which intersects two or more lines at different points. This line is your transversal. Now, transversal makes total how many angles with, if I am having two parallel lines, ध्यान से देखो, red line is your transversal. It makes 8 angles and there are certain properties of these 8 angles which you should know very well to do the questions based on these properties. 1 2 3 4 5 6 7 8. जब एक ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइंस को कट किया या इंटरसेक्ट किया, ये 8 एंगल्स हमारे पास आए. फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स. ध्यान से देखो, ये भी दो पैरेलल लाइन है, एक ये वाला एक ये वाला, दो पैरेलल लाइन है. जब एक ट्रांसवर्सल ने इन्हें कट किया, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी एंगल हैं, इसका मतलब ये वाले दोनों और ये वाले दोनों, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल है इंटीरियर रीजन में, उन्हें हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स. जो इनके बीच में नहीं है, विच आर आउटसाइड, दोज आर एक्सटीरियर एंगल्स. द बेस्ट वे टू लर्न इट. तो यहाँ पे इंटीरियर कौन सा है? देखो, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 3 भी बीच में है, 4 भी बीच में है, 5 भी बीच में है और 6 भी बीच में है. यानी इस रीजन में इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है वो इंटीरियर है. लाइन के बाहर जो भी एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल. सो विच ऑल आर इंटीरियर हियर? 3 4 5 6. आई कैन राइट एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स. तो जब भी हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ऑल्टरनेट जो अभी आएगा, आपको याद रखना है इंटीरियर एंगल है कौन से बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. अब जो एंगल अंदर की तरफ नहीं है, विच आर आउटसाइड, दोज आर एक्सटीरियर. तो यहाँ पर एक्सटीरियर इज 1 and 2. पैरेलल लाइन के बीच में नहीं है ना, ये दोनों बाहर की तरफ है. 1 2, लाइक वाइज 7 8. तो आधे आधे ट्रांसफर हो गए. 4 आर इंटीरियर एंड 4 आर एक्सटीरियर. याद कैसे रखेंगे? एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों इंटीरियर, दो ऊपर दो नीचे बाहर की तरफ एक्सटीरियर. ठीक है. दिस मच अंडरस्टूड. Let's come to now corresponding angles.
Another term now you should know is corresponding angles. Beta, correspond means which have the same position. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, यहां ध्यान से देखो, पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में, अगर मैं यहां पर इसको शेड करती हूँ, एंगल 2 जो है हमारा, ये पैरेलल लाइन के ऊपर है ना, ट्रांसवर्सल के राइट में, इसकी जैसी पोजीशन का दूसरा कौन सा एंगल है, ये भी पैरेलल लाइन है इसके ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में। अब आप ध्यान से देखो, एक जैसी पोजीशन है ना दोनों एंगल की, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल का राइट, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल का राइट। सो वेन एवर टू लाइन्स आर पैरेलल द पेयर ऑफ ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से हैं, पहला पेयर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। आई होप यू आर एबल टू मेक आउट, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन बिल्कुल एक जैसा है। लेट अस सी द अनदर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। अगर मैं इसको कलर करती हूँ ग्रीन वाला, इसके जैसा कौन सा एंगल है जो सेम पोजीशन है, पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। आप देखो बिल्कुल एक जैसी पोजीशन है। सो आई कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एक जैसा पोजीशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, विल बी एबल टू गेट 4। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, पैरेलल लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल का राइट, पैरेलल लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल का राइट। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। सो विच इज नाउ द लास्ट वन, एंगल 3, ये नीचे वाला एंगल, एंगल 7 नीचे वाला एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। और ये सारे कौन से पेयर है, these are the pairs of corresponding angles. Corresponding means which are at the same position. ठीक है, इनका पोजीशन सेम होना चाहिए। 2 and 6, 1 and 5, 4 and 8, 3 and 7. If two lines are parallel, these corresponding pairs of angles will always be equal. ठीक है, तो अगर एंगल 2 मुझे पता है इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, अगर आपको ये दो लाइन एल और एम पैरेलल दी हुई है, एक ट्रांसवर्सल है, एंगल 2 की वैल्यू 60 है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इक्वल टू एंगल 6 एंड वाई, आप बोलोगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। व्हाट इज द रीजन, सेम रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, गुड टू गो। आफ्टर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्लीज हैव अ लुक, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें पढ़ना है व्हाट आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहला वर्ड, द क्लू हियर इज इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब आई टोल्ड यू द एंगल्स बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन, इन दोनों के बीच के एंगल। इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 3, 4, 5, 6, इन चार एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑल्टरनेट मीन्स अगर एक एंगल लेफ्ट है दूसरा राइट पे होना चाहिए, एक टॉप में है एक बॉटम में होना चाहिए, ऐसे आप याद रखो। अब व्हाट डज इट मीन, एंगल 3 इंटीरियर एंगल है ना, ऊपर भी है एंड लेफ्ट में भी है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में टॉप। सो एंगल 3 एंड एंगल 6 दे आर ऑलवेज इक्वल इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इन्हें हम बोलेंगे alternate interior angle. In the similar manner, angle 4 and angle 5, angle 4 and angle 5 opposite position में, एक देखो ट्रांसवर्सल के राइट में है, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, एक टॉप में है एक बॉटम में है। मैंने यही बोला ना, जिनका डिफरेंट पोजिशन हो, ऑल्टरनेट। सो आप इसे याद कैसे रखोगे, आप एक क्रॉस याद करो, 4 and 5 देखो क्रॉस पोजिशन, 3 and 6 cross position, but inside between the two parallel lines only. ठीक है, because these are alternate interior angle. हम इंटीरियर की ही बात कर रहे हैं, हम 1 to 7, 8 की बात नहीं कर रहे, वो तो एक्सटीरियर है। ठीक है, ये क्रॉस पोजिशन याद रखो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। व्हाट इज द रीजन, दे आर alternate interior angles and they are always equal if the lines are parallel. ठीक है, alternate interior हो गया। अब आप आ जाओ alternate exterior।
एग्जैक्टली द सेम, लेट मी पुट अ टिक हियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर हमारा हो गया. नाउ वी आर एट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब हम इंटीरियर की तो बात ही नहीं कर रहे, इसको भूल जाओ. इंटीरियर एंगल्स वी हैव जस्ट डन ऑल्टरनेट इंटीरियर. अब हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 7, 8, ये चारों एक्सटीरियर है ना. अगेन द सेम रूल, एक टॉप, एक बॉटम, एक लेफ्ट, एक राइट. जैसे हमने यहां क्रॉस किया था ना, सेम क्रॉस आप एक्सटीरियर पे अप्लाई करोगे. 1 and 8 देखो क्रॉस पोजीशन. 2 and 7 अगेन क्रॉस पोजीशन. एक कहां पर है? एक अप है और राइट हैंड साइड में है, एक डाउन है और लेफ्ट हैंड साइड में है. दिस इज अपर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लोअर राइट हैंड साइड. ऑपोजिट ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है. सो यह एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, angle 1 is equal to angle 8. What is the reason? They are the pair of alternate exterior angles. Let me just show you once again. बाहर वाले एंगल्स, एंगल 1 ये वाला एंगल एंड एंगल 8 ये वाला एंगल, देखो डिफरेंट डिफरेंट साइज पे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक लेफ्ट में है, एक राइट पे है. इन द सिमिलर मैनर एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे. एक्सटीरियर 1. इन द सिमिलर मैनर ये एंगल 7 एंड एंगल 2, 7 नीचे है, 2 ऊपर है. 7 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, ये ट्रांसवर्सल के राइट में है, ठीक है. सो whenever two lines are given to you as parallel to each other, alternate interior as well as alternate exterior angles are equal to each other. Understood? बहुत आसान है. It's just like you need to revisit the video once again, practice the questions. आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, इट विल बिकम वेरी हैंडी फॉर यू. ज्यादा बम्बार्डमेंट नहीं करेंगे. नाउ द लास्ट पेयर ऑफ एंगल्स विच इज लेफ्ट आउट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, को इंटीरियर एंगल्स. ये वर्ड आपको याद रखना है, बहुत जगह याद काम आएगा ये. को इंटीरियर एंगल्स, दोबारा से क्लू हमारे पास है. हम कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं? इंटीरियर एंगल. इंटीरियर में 1, 2, 7, 8 ये तो हो ही नहीं सकता, है ना. इंटीरियर में 3, 4, 5, 6 के अलावा नहीं हो सकता. को का मतलब बेटा एक साथ, को इंटीरियर. अगर लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो दोनों लेफ्ट में, राइट की बात कर रहे हैं तो दोनों राइट में. राइट ऑफ व्हाट? राइट ऑफ ट्रांसवर्सल और लेफ्ट ऑफ ट्रांसवर्सल. सो को इंटीरियर आर द एंगल्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. आपकी ट्रांसवर्सल ये रेड वाली है ना, हमने बोला इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है. 4 and 6 देखो, 4 भी राइट हैंड साइड में है, 6 भी राइट हैंड साइड में ऑन द ऑफ द ट्रांसवर्सल. 3 इज ऑन द लेफ्ट, 5 इज ऑन द लेफ्ट, ठीक है. अब प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. इसका मतलब इफ आई एड दीज टू एंगल्स द सम शुड ऑलवेज बी 180. In the similar manner, if you add these two angles 3 and 5, the sum should always come as 130 degree. And what is the reason? They are co-interior. दोबारा बताओ. If I have two parallel lines, one transversal, ये वाले दोनों एंगल which are on the same side of transversal. अगर मैं इसे 4 और इसे 6 बोलती हूँ तो 4 + 6 एंगल्स, ये एंगल का नाम है, इट्स नॉट द मेजर. Angle 4 plus angle 6 should always be equal to 180. Reason being co-interior. अगर मैं इस एंगल को A और इसको B बोलती हूँ, देखो दोनों आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और दोनों इंटीरियर में है. सो A plus B will always be 180 degree when the two lines are parallel to each other. ठीक है, अंडरस्टूड. अब एक काम करते हैं, लेट अस डू वन क्वेश्चन which includes all these concepts which we have learned so far. ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर होंगे. लेट मी डू दिस क्वेश्चन फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी
erase so that you understand what I'm asking about. If I say the value of this angle is 60 degree, मैंने सिर्फ आपको एंगल 2 की वैल्यू बताई है, आपको सारे एंगल मुझे बताने हैं. व्हाट इज द मेजर ऑफ अदर एंगल्स, एंड ऑफ कोर्स एट ईच स्टेप यू नीड टू मेंशन विच प्रॉपर्टी हैव यू यूज्ड. ठीक है, पहले हम यूज कर लेते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. विच एंगल इज वर्टिकली ऑपोजिट टू 2? 2 और 1 डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, 2 और 4 डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. तो कौन सा एंगल 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है? आप देखो ऑल्टरनेट, ऐसे वर्टिकली ऑपोजिट. सो एंगल 2 और एंगल 3 ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गए. सो यू विल राइट एंगल 2 equal to angle 3. What is the measure? 60 degree, and the reason is vertically opposite angle. ठीक है, एंगल 3 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं. एंगल 1 और एंगल 2 आर दे मेकिंग अ लीनियर पेयर? बिल्कुल, दे आर द एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन. लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180. 180 में से अगर एंगल 2 60 डिग्री है तो एंगल 1 कितना हुआ? एंगल 1 plus angle 2, it is 180 degree. What is the reason? They are making a linear pair. So angle 1 is 180 minus angle 2. Angle 2 है 60. Angle 1 कितना हुआ? 120 डिग्री. एंगल 1 की वैल्यू आ गई है 120 डिग्री. हमने लीनियर पेयर यूज किया, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. अब एंगल 1 और एंगल 4 ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना. तो एंगल 1 अगर 120 है तो एंगल 4 भी 120 हो गया. दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट. यहाँ तक हो गया लीनियर पेयर, और हमने वर्टिकली ऑपोजिट यूज किया. ये चारों एंगल आ गए. अब ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल में तो रिलेशनशिप होता है ना. एंगल 2 और एंगल 6 आर दे ऑन द सेम लेवल? आप देखो 2 और 6 तो बिल्कुल एक जैसे लेवल पे है. दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल 6 कितना हो गया? 60 डिग्री. रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग. इन द सिमिलर मैनर एंगल 4 नीचे वाला एंगल, एंगल 8 नीचे वाला एंगल, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है. एंगल 4 और एंगल 8 एक जैसी पोजीशन में है, तो 4 120 है तो 8 भी तो 120 होना चाहिए, ये भी 120. सिमिलर मैनर एंगल 5 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? एक जैसा पोजीशन. आप देखो एंगल 5 एंगल 1 सिमिलर पोजीशन कॉरेस्पॉन्डिंग. एंगल 5 भी 120 डिग्री. एंगल 3 एंड एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग, इट इज अगेन 60 डिग्री. आसान है ना. only one angle was given, we have used the properties and all the angles are found. Now I ask you, अगर ये वाला एंगल, एंगल 4 मैंने आपको बोला ये 120 डिग्री है, आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 5? 4 और 5 दोनों इंटीरियर है, एक टॉप पर है, एक बॉटम में है, एक राइट में है, एक लेफ्ट में है. ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो तो इक्वल होते हैं. सो एंगल 4 अगर 120 है तो एंगल 5 भी तो 120 होना चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर. ओके, एंगल 3 और एंगल 5 आर दे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल? है ना. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को हम को इंटीरियर बोलते हैं, जिनका सम इज ऑलवेज 180. तो एंगल 3 और एंगल 5 का सम तो 180 होना चाहिए. So what is the answer for angle 3? It is 60 degree. क्यों? इन दोनों का सम 180 होता है, को इंटीरियर. अब एंगल 3 और एंगल 6 ये कैसे हैं? ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है, क्रॉस पोजीशन. एंगल 6 भी हो गया हमारा 60 डिग्री. In the similar manner, I can still find out what is the value of angle 1, 2, 7 and 8. ठीक है. So this is all about the different kind of angles that we have to learn in the times this chapter, lines and angles. What you are supposed to do now, please do your exercise questions, NCERT questions. Only 2 exercises are there. I will try to make another video wherein I will covering the exercises 5.1 and 5.2. Till then, if you still find difficulty in any of the angles and you want me to explain any particular topic, do not forget to comment. ठीक है. Please like, subscribe and share this video. Right? I will wait for your compliments and comments, and please don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching in. Take care.